अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहು। ಅದೇ ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮವರು 2 ದಿವಸ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಏನು ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಕೂತು ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ FIR ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡಿ ಒಂದು ನಿನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಾವು ತಕ್ಷಣ ಯತಿ ನರಸಿಂಹಮಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ತಾವು FIR ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತಾವು FIR ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅತ್ಯಂತ ಅವ್ಯಾಚ್ಯ ಪದಗಳಿಂದ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿದಂಥ ಯತಿ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ಸ್ಪೆಷಲಿ UP-ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ತಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಿಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇದ್ರೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂಥ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸರ್ವಸ್ವ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಪೈಗಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಇದ್ದಂಗೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ಬಲಿದಾನಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅವರು FIR ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡము ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೊನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರು, ಈ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡವರು ಕೂತು ಮಾತಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮೊನ್ನೇನು ಏನು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಯಿತು, ಮಿಲಾದುನ್ ನಬಿ ಆಯಿತು, ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಭಾಳಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ನಾವು FIR ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮದು. ನಾವು FIR ತಾವು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟು ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಘಾತಕರು, ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಕೇಸ್ ಆಗಿರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂಥವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ತಾವು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಠಿಣವಾದ ಕಾನೂನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ನಾವು FIR ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ, ನಾವು ಮುಂದೆ FIR ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಭಾಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಯುವಕರು ಭಾಳಷ್ಟು ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು FIR ಮಾಡಿದರೆ ಸಂತೋಷ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ FIR ಮಾಡಿ FIR अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 29 सितंबर को गाजियाबाद का एक मठ में रहने वाला यति नरसिंहानंद सरस्वती स्वामी, जो स्वामी के नाम पे इस देश के अंदर जो बहुत से स्वामी जी है जो अपने धर्म के भले के लिए काम करते हैं, लेकिन ये दूसरे धर्म के बारे में फाइल बोलकर अपना नाम करने के लिए ये कर रहा है। ये स्वामी के नाम पे एक कलंक है हिंदुस्तान के अंदर। ये यति नरसिंहानंद स्वामी ये एक बार नहीं, मैं समझता हूँ बहुत से 4-5 बार ऐसे हमारे एक कम्युनिटी के बारे में बोल रहा है। इसीलिए मैं हर हिंदुस्तान का हर जगह से उसके ऊपर एक FIR होने के लिए मांग हमारे मुसलमान भाई लोग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं उसे, ताकि सख्त से सख्त सज़ा मिले उसको। ऑलरेडी अब गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट पुलिस अरेस्ट करे, उसके ऊपर FIR हुआ है, अंदर है अब। लेकिन ये नाटक
4 दिन का 8 दिन का नहीं होना है। एफआईआर करे अंदर डाले फिर छोड़े, ये सब नहीं होना। ये 2-3 बार ऑलरेडी हुआ है कि फिर इसीलिए इस बार सख्ती से सख्त सजा दे उसके ऊपर, अच्छे से अच्छे कानून के अंदर जो सख्त एक्ट है वो एक्ट लगाकर उसको बाहर ना आए, ताकि दूसरों को इससे एक ये मिले। दूसरा, और एक बार हमारे कौम के बारे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी करने से सोचने के लिए मजबूर हो। मैं बस इतना कहता हूँ, रायचूर शहर के हमारे नौजवान बहुत ही उतावले थे ये प्रोटेस्ट करने के लिए। इस सिलसिले में बहुत एक मायूसी थी हमारे अंदर, बहुत तकलीफ हुई थी मुसलमानों को, हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को बहुत तकलीफ हुई थी जो गुस्ताखी करा था वो स्वामी। इसीलिए बहुत पूरे सारे हिंदुस्तान और सारे दुनिया के अंदर भी इस स्वामी के बारे में एक गुस्सा था हमारे अंदर, एक दिल में एक ऐसा गुस्सा था वो नौजवानों के अंदर। वो भी यहाँ रायचूर शहर में भी देखने को मिला हमारे को। इसलिए हम भी यहाँ रायचूर शहर के अंदर हम एक जिम्मेदार होते हुए सारे मशाइखिन और सारे उलमा इकराम, हमारे पॉलिटिकल के पूरे सारे बड़े लीडर मिलकर, हमारे फैजल खान, जफर मौलाना, हमारे मुर्शद जानी साहब, पूरे नौजवानों को लेकर एक कल रात में अतनूर फंक्शन हॉल के अंदर एक मीटिंग करे, ये प्रोटेस्ट करना बोलकर सोचकर एक मीटिंग करे थे। लेकिन वो होने के बाद पूरे सारे मशाइख उनको कुल जमात काउंसिल के पूरे जमात वाले को बुलाए, पूरे लीडरों को बुलाए, मशाइख उनको बुलाए, उलमा इकराम आए, एक मीनार के अंदर एक फाइनल मीटिंग करे रात में 9 से 10 बजे। वो मीटिंग में ये तय हुआ हम इस जालिम के खिलाफ एक एफआईआर करना है, उसको सजा मिलना हमारा मकसद क्या है, उसको सजा दिलाना, सजा मिलना हमारा मकसद है, हमारे नौजवानों का, हमारा भी। इसीलिए वो सिलसिले में सभी अपनी अपनी राय दिए, बहुत से 1 घंटा से 1.5 घंटा तक मीटिंग हुआ, अपनी अपनी राय रखे, सभी का एक ही राय था प्रोटेस्ट करने की। अगर एफआईआर उसके ऊपर अगर एफआईआर एसपी साहब पुलिस डिपार्टमेंट एफआईआर करते हैं तो हम प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं, कानूनी कार्रवाई हम आगे करेंगे। ये ऐसा एक डिसाइड हुआ वहाँ रात में मीटिंग के अंदर। फिर रात में एसपी साहब का भी मैं फ़ोन कर उनका टाइम लिया, 11:30 से 12 बजे तक एक एसपी साहब टाइम दिए थे हम सबको मिलने के लिए। हम एसपी ऑफिस को गए, जाने के बाद पूरे लोग जाने के बाद वो अच्छा रेस्पॉन्स करे, इमीडिएट हमारी बात सुने, रेस्पॉन्ड करे और इमीडिएट 2 घंटे के अंदर एफआईआर भी उसके ऊपर एफआईआर भी करा दिए, कराकर एफआईआर कॉपी भी हमारे हाथ में दे दिए इमीडिएट। इसलिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट का भी, एसपी साहब का मैं यहाँ दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये बात किस लिए बोल रहा हूँ, तो हमारा रायचूर शहर, अब मौलाना बोले, जो गंगा ज़मीनी तहजीब है पहले से, जो हमारे पुरखों से चलते आ रहे, जो हमारे हम हिंदू मुसलमान हर जात के लोग, हम जो भाईचारा यहाँ पर है, जो मोहब्बत से हम रहते हैं, हमारे रायचूर में रहते, हिंदुस्तान में रहते, हर जगह है ये। लेकिन ऐसे लोगों के ऐसे जो शैताना बोलना, शैतान इंसान नहीं, शैतान रेसर का है, माहौल ख़राब करना, भाईचारे हमारे जो मोहब्बत है, मोहब्बत को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश है। इसको हम हुकूमत से हम गुजारिश करते हैं, इस पे बहुत सख्त से सख्त इस पर सजा दिलाए, उसे जेल, उसके अंदर जेल के अंदर से बाहर ही नहीं आना, उन्हें वैसा एक्ट लगाना उसको। हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े स्वामी जी, जो अमन पसंद स्वामी जी है, जो सभी के सभी धर्मों को इज्जत करते हैं, लेके चलते हैं, वैसे स्वामी जी भी इस बयानबाजी को, इस जो गुस्ताखे नबी के बयानबाजी को कंडम करे। और बहुत से गैर कौम के हमारे बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग भी हिंदू धर्म में बहुत से लोग हैं, इस बयानबाजी को कंडम करे। जो अमन पसंद करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, सब जो भाईचारगी से हम सब भाई की तरह जो रहना चाहते हैं, वो लोगों को भी है ना बहुत कंडम करे। इसीलिए मैं बोलना इतना चाहता हूँ, रायचूर शहर के अंदर पूरे सारे नौजवानों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारा मकसद था वो मकसद कामयाब हुआ। हमें एसपी साहब को गए, कंप्लेंट करे, एफआईआर इमीडिएट 2 घंटे के अंदर एफआईआर करे। वो इस तहत के वो जो एक्ट लगाए, वो एक्ट भी आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ 1 सेकंड के अंदर। हमारे एफआईआर बशीरुद्दीन साहब, एक्स जेडपी मेंबर, उनके नाम से एफआईआर का फाइल हुआ है। उसके अंदर एफआईआर नंबर 102/2024 बशीर भाई की जानिब से कंप्लेंट किया गया है, उनके नाम से, इंडिविजुअल उनके नाम से कंप्लेंट किया गया है। कॉलम जो एक्ट लगाए 152, 196, 197, 299, 302, 351/1, 351/2, 352, 353 BNS 2023 एंड 67 IT एक्ट 2000 इसके अंदर एफआईआर दर्ज किया गया है। इसीलिए मैं सारे शहरियानी आवाम और सारे खास कर सारे नौजवानों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो आगे की कानूनी कार्रवाई हम सब इंशाअल्लाह इसको फॉलोअप करेंगे, इसको देखेंगे, ताकि आप कोई गलत कदम ना उठाए, जोश में आकर कानून अपने हाथ में ना ले। शुक्रिया।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त यूपी शहर के अंदर एक बदबख्त शख्स ने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हाँ, बहुत हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की उस बदबख्त शख्स ने। तो लिहाजा मैं और हमारे रायचूर के तमाम नौजवान मिलकर यहाँ एक प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे। इसी के ज़िम्मन में फैसल खान और हमारे अली भाई दिगर नौजवान मिलकर अतनूर फंक्शन हॉल में कल एक मीटिंग रखे थे। उस मीटिंग में ये तय पाया गया था कि कल प्रोटेस्ट करना है जुम्मा के दिन। मगर इसके बाद जैसी वहाँ मीटिंग हुई, हमारे आली जनाब डिप्टी एमएलए मोहम्मद शालम साहब और बशीरुद्दीन साहब दोनों ने कहा कि नहीं भाई, कुल जमाती इजलास की जानिब से एक मीनार मस्जिद में एक मीटिंग होने जा रही है, आप तमाम ही हजरत वहाँ पर तशरीफ़ लाएं, वहाँ तय करेंगे। तो सारे लोग मिलकर वहाँ ये डिसाइड करें कि सुबह एसपी ऑफिस जाएंगे और वहाँ पर हम कंप्लेंट देंगे उसके बारे में, जिसको हम स्वामी भी नहीं बोल सकते। स्वामी एक ऐसा पवित्र शब्द है जिसके ऊपर भी स्वामी का शब्द लगता है, वो लोगों के सर पे हाथ रखता है, चेहरे देखकर नहीं, मुंह देखकर नहीं। कोई भी आंधे स्वामी उसका भला चाहता है। ये कई का स्वामी है, ये नाम बदनाम कर रहा है स्वामियों का। ये दंगे फसाद की बात करता है, जब इसका मुंह खुलता है तो दंगे फसाद की बात करता है, मजहबियत के खिलाफ बोलता है। इसको कड़ी से कड़ी सजा हुकूमत देना चाहिए और इसकी बेल भी ना मिले, या तो इसे तड़ी पार करें या उम्र कैद की सजा दें या फांसी दें। इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे रायचूर के कुल जमात वाले और मशाइखीन इकराम, सादात इज़्ज़ाम, उलमा इकराम, अमाए दीन मिलकर सब एसपी ऑफिस को गए थे 11:30 बजे। एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, सर्कल साहब, सदर बाजार के और पीएसआई साहब, सारे लोगों ने हमें बहुत ही अच्छा तयखुन देते हुए हमारे कंप्लेंट को लिया और उसके ऊपर एफआईआर हो चुका है। वो कापी हमारे हाथ में मौजूद है, एफआईआर हो चुका है, ये हमारे हाथ में मौजूद है। हमारे तमाम शहरियान रायचूर के नौजवानों से हम अदबन गुजारिश करते हैं कि आप अपने गुस्से का इजहार जो करे थे अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल हो गया है। अब आप दुआ कीजिए बस। और इसको फॉलो अप करने के लिए मैं हमारे आली जनाब मोहम्मद बशीरुद्दीन साहब और मोहम्मद शालम साहब से गुजारिश करता हूं, ये कंप्लेंट देकर बैठना नहीं है, इसको फॉलो अप करना। ये फाइल कहाँ तक पहुंची, उसको बुला रहे या नहीं बुला रहे, रायचूर को उन्हें कोर्ट में अटेंड करना, उन्हें यूपी में बैठ को वहां से यहाँ बुला लिया, फाइल कराया, नहीं, यहाँ आना, उन्हें हर जगह कोर्टा फिरना, उन्हें हर डिस्ट्रिक्ट में केस होना, ताकि उसकी उम्र इसी में ख़त्म हो जाए। मैं शालम भाई से भी, बशीर भाई से गुजारिश करूंगा। और इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए एक आखिरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, एसपी साहब और पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा हमारे शहर रायचूर में गंगा जमनी तहजीब देखकर उन्होंने यहाँ के लोगों के माहौल में अमन कायम करने के लिए हमेशा हमारे ईदों को, रब्बीउल अव्वल हो, मुहर्रम हो, उनका गणेश का त्यौहार हो या दिवाली दशहरा हो या अगरचे वो उनकी कौन सी भी होली के त्यौहार हो, इन तमाम त्योहारों में हमारे ईदों में इतना अच्छा कोऑपरेट करके साथ देते हैं कि बेचारे खुद अपने घर में बीवी बच्चों के साथ ईद ना करते हुए हमारे साथ रहते हैं, हमारे शहर में रहते हैं। हम पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि एसपी साहब ने इस कंप्लेंट को बहुत सीरियस लेकर इमीडिएटली 2 घंटे में एफआईआर तैयार कर दिए, वो हमारे हाथ में आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एफआईआर हैं, आप देख सकते हैं, हमारे फैसल खान के पास भी हैं, अली भाई के पास भी हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हाल ही में हम सब नौजवान पूरे वार्डों से और मशाइखीन को बुला के हमने अतनूर फंक्शन हॉल में कल एक मीटिंग किए थे। उस मीटिंग में एक नतीजा आया था कि हम कल जुम्मा एक एहतजाज करेंगे। एफआईआर करने की वजह से हमने प्रोटेस्ट को कैंसिल किया। तो तमाम शहरान रायचूर को मैं इत्तला देना चाहता हूँ, कल कुछ प्रोटेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी एफआईआर हो गई है। शालम भाई, बशीर भाई तमाम ने आज जाके जो एसपी ऑफिस में करा था वो चीज़ कामयाबी हो गई। तो हमें कुछ प्रोटेस्ट करने की आगे ज़रूरत नहीं है। ये बात बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।